ओके, तो हम लोग पार्ट 1 में स्वामी विवेकानंद का जो फर्स्ट पैराग्राफ था वहाँ तक पढ़े थे। अभी हम लोग स्वामी विवेकानंद से मतलब उसी का जो कंटिन्यूएशन है वो पढ़ेंगे। सो वी हैव लर्नड इन आवर लास्ट वीडियो अबाउट राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती and about Swami Vivekananda. So this is the continuation only. So basically in 1887 Swami Vivekananda established the Ramakrishna mission to spread the message of his guru. तो जैसे कि हम लोग क्लास वीडियो में पढ़े थे कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के मैसेज को मतलब उसको अपने नेशन तक पहुंचाने के लिए 24 की एज में ही उन्होंने मतलब जो है अपना जो वर्ल्डली प्लेजर है उसको छोड़ दिया टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ हिज गुरु Ramakrishna Paramhasna, like his guru's name was Ramakrishna Paramhasna. Then the mission established many schools, libraries, orphanages and hospitals. It also provided relief and security measures during flood, famines, epidemics and other natural calamities. So Swami Vivekanand in his journey also established several schools, hospitals and etc. which helped in different situations. 1893 में स्वामी विवेकानंद वेंट टू अमेरिका, जहाँ पे उन्होंने अटेंड किया वर्ल्ड पार्लियामेंट को ऑफ रिलीजन्स शिकागो में। जो डेलीगेट्स थे वो उन्होंने मतलब डेलीगेट्स प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस वे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्पीच एंड द न्यूयॉर्क हेरल्ड रिपोर्टेड लाइक वो जब अमेरिका गए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस शिकागो में यूएसए में, उन वहाँ के जो लोग प्रेजेंट थे उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में उनको एड्रेस करने के लिए, तो बेसिकली क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे दे गॉट वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विथ हिज स्पीच। और इनफैक्ट जो न्यूयॉर्क हेरल्ड है उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया कि आफ्टर हियरिंग हिम वी फील हाउ फुलिश इट is to send missionaries to his learned nation. ठीक है, he established the Vedanta societies in America and boldly defended the superiority of the Vedas in the West. यानी कि इन्होंने वेदांता सोसाइटीज़ को भी अमेरिका और वगैरह में डिफेंड किया और जो सुपीरियरिटी है वेदास का वेस्ट में उसको भी डिफेंड किया। स्वामी विवेकानंद अपना जो वॉइस है ही रेज्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, कि जो कास्ट सिस्टम का जो पर्टिकुलर एक सिलसिला चलते आ रहा है, दिस शुड नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। ही वेहेमेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी. He was against the feeling of superiority among the Hindus. He felt that because of its evils, the rich culture of Hinduism had been confined to kitchen. That is true. उन्होंने बोला कि जो हिंदुइज्म में जो ये जो अपने दे फील्ड दैट दे आर द मोस्ट सुपीरियर वंस एंड इवन द इविल्स विच आर फॉलोड इन हिंदुइज्म, या फिर सिर्फ बिकॉज ऑफ द बीइंग अ वेरी रिच कल्चर और समथिंग दे आर कन्फाइंड टू किचन. सो दिस शुड नॉट बी डन. लाइक एवरी कल्चर शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड दिस कैन ओनली बी डन व्हेन कॉमन पीपल विल टेक इनिशिएटिव इन देयर ओन सेल्फ दैट yes, we have to take everyone with us so that the country could proceed equally. He preached that service of humanity was the service of God. He said that the service of humanity which is there, that is the service of God. Like it is also said in the poem Abu Ben Adam that if you serve your fellow men, it is indirectly you are serving God. So he published a pamphlet, I Am a Socialist, where he appealed to the upper classes of India to give up their privileges and merge themselves with the lower classes. So he said that I am a socialist, and he wrote in that the upper classes should come up and should make privileges, should merge with the lower classes as well. He believed in the service of the poor, downtrodden and the distressed. यानी कि he believed that the service of poor, downtrodden and the distressed should be done. Now comes Jyotirao Govindrao Phule. Basically, Jyotirao Govindrao Phule was a very great reformer of Western India. So from West India he belonged. He who struggled the lower castes.
He was born in 1827 at Pune, Pune. Joyitrao Phule received his education at the missionary school. Once he was scolded by a Brahmin for joining a marriage profession of the Brahmin. So he belonged from a lower caste family. So basically when he took education from missionary schools, and he once when went to basic marriage professions, he was scolded by a Brahmin that why he joined this. So this incident changed the whole course of Jyotiba's life, and he dedicated his whole life against the untouchability and the casteism between the upper class and the lower class. He openly criticized the superiority of the Brahmins. Like, he openly said that the Brahmins consider themselves as one of the most superior group of the society, were actually foreigners of the Aryans who had established their rule in India by defeating the native people. So basically these Brahmins are the foreigners who defeated the native people, and now they are like the untouchable, and they follow upper classes and lower classes, and they consider themselves as the lower classes. Like जो आर्यंस थे वो आए थे हम लोग सबसे पहले जो सिविलाइजेशंस, मतलब सिविलाइजेशंस नहीं, लेकिन जो हम लोग जो जब हम लोग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि आर्यंस जो है वो आए, और वही आर्यंस उन वहाँ के नेटिव पीपल को क्रिटिसाइज करते करते एक जो है हाई लेवल अपर क्लास का एक कंसिडर कर लिया अपने आप को, और वो यहाँ पे रहने लगे। एंड बेसिकली इसी वजह से जो अपर क्लासेस और लोअर क्लासेस का डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा बढ़ा। He wanted Shudras, labor classes and अति शूद्रास अनटचेबल्स टू टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। यानी कि अब शूद्रास में भी कुछ ऐसे क्लासेस थे, जैसे कि था कि जो लेबर क्लास था, और दूसरा जो बिल्कुल ही अनटचेबल था। तो सिर्फ कास्ट के बेसिस पे हाउ कैन यू से अ पर्सन दैट ही और शी शुड नॉट बी टच्ड, और ही और शी शुड नॉट गेट दिस प्रोफेशन और समथिंग। सो इसी वजह से यहाँ पे ये चीज़ हुआ। और बेसिकली जो ज्योतिराव गोविंदराव फूले हैं वो खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और वो जब देखे कि दीज थिंग्स आर हैपनिंग, सो वो चाहते थे कि बाकी लोग भी जो साथ में आए और इसके खिलाफ बोले। ज्योतिबा एडुकेटेड हीज वाइफ सावित्रीबाई फूले सो दैट शी वुड इन टर्न टीच द चिल्ड्रन ऑफ लोअर कास्ट। तो उन्होंने अपनी जो वाइफ है सावित्रीबाई फूले उनको एडुकेट किया ताकि वो जो लोअर क्लासेस के जो चिल्ड्रंस हैं उनको पढ़ा सके। Along with his wife, he started a school for the education of lower caste girls. So not only he taught her wife, but also he opened several schools for the education of lower caste girls. Savitri Bai was the first woman teacher of modern Maharashtra. So this is a very good thing that modern Maharashtra की जो सबसे पहली woman teacher है वो सावित्री बाई थी। मतलब जो सबसे पहली वुमेन टीचर थी वो सावित्री बाई थी। एंड शी ऑल्दो बिलोंग्स फ्रॉम अ लोअर कास्ट फैमिली, but because of ज्योतिराव गोविंदराव फूले ही ऑल्सो गॉट learned, एंड उसके बाद फिर यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुआ। अ स्कूल फॉर द मांग एंड महर अनटचेबल कास्ट वाज ओपनड इन 1851। तो जो मांग और महान यानी कि अनटचेबल्स के लिए भी एक बेसिक स्कूल जो है वो ओपन हुआ 1851 में, फॉर विच बोथ द सावित्री बाई वर क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑर्फन क्लासेस, यानी कि बेसिकली ऑर्थोडॉक्स क्लासेस। यानी कि जब भी हम लोग कोई नया चीज़ करने का सोचते हैं तो हमेशा लोग जो है उसको क्रिटिसाइज़ करते ही हैं। मे बी वो जेलसी की वजह से हो, मे बी वो ट्रेडिशन जो सालों से वो फॉलो करते आ रहे हैं उसके अगर हम लोग कुछ अगेंस्ट में बोल दिए तो हो, किसी भी बेसिस पे, तो वो लोग हम लोग को बोलते हैं लाइक द पीपल हु ऑब्जेक्ट की, या फिर जो पीपल कुछ नया यूनिक करने का कोशिश करते हैं उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि उन लोगों का इतना जो है कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद आ सकें। इनको भी वैसा ही क्रिटिसिज्म मिला। Jyotiba educated his wife Savitri Bai. Okay, so this is done now. Jyotiba founded the Satya Shodhak Samaj in 1873. तो बेसिकली ज्योतिबा जो थी उन्होंने सत्य शोधक समाज का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया। इसका जो मेन एम था वो ऑर्गेनाइजेशन था वाज टू एडुकेट द लोअर कास्ट एंड मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड पावर्स। यानी कि जो लोअर कास्ट है उनको पढ़ाना लिखाना और उनको भी जो एडुकेशन है उनसे
मीट करवाना उनसे, मतलब ताकि वो लोग भी पढ़ लिख सके और जो लोअर कास्ट है उनको भी राइट्स मिले पढ़ने लिखने का। द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज ओपन टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये सारे रिलीजन्स के लिए ओपन था। Jyotiba also expressed his anti-Brahminical ideas in his books गुलामगिरी, सार्वजनिक एंड सत्य धर्म पुस्तक। तो इन सारे बुक्स ने भी, मतलब इन सारे बुक्स में भी उन्होंने अपना व्यूज़ और आइडियाज़ दिया। His book Gulamgiri was dedicated to all those Americans of the American Civil War who fought for the abolition of slavery। तो हम लोगों ने अमेरिकन सिविल वार भी पढ़ा, वहाँ पे भी क्या था कि लोग जो है, जो कॉलोनिस्ट है, वो खड़े हुए और इंग्लैंड के अगेंस्ट में उन्होंने फाइट किया फॉर देयर फ्रीडम, फॉर देयर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट एक एक्टिव मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी में, जो जिन्होंने फाउंड किया हेलेना ब्लेवेट्स्की एंड हेनरी स्टील ऑलकट एट न्यूयॉर्क इन 1875। यानी कि इन्होंने इन दो जो है बेसिकली इन सोसाइटीज़ को फाउंड किया 1875 में। जो द फाउंडर्स केम टू इंडिया इन 1879 एंड एस्टेब्लिश द सोसाइटीज़ हेडक्वार्टर एट आद्यार नियर मद्रास। यानी कि ये यहाँ पे आए, जो फाउंडर्स थे वो यहाँ पे आए और उन्होंने इस्टेब्लिश किया सोसाइटी का हेडक्वार्टर्स को आद्यार में, जो कि बेसिकली मद्रास के आसपास प्रेजेंट है। मिसेस एनी बेसेंट ने भी ज्वाइन किया इस सोसाइटी को 1888 में इंग्लैंड में, और जो सोसाइटी था ये प्रीच किया जो भी डॉक्ट्रिन्स या रिलीजन, फिलोसॉफी या फिर ऑक्यूल्टिज्म था वगैरह वगैरह, ये जो था हाईली इन्फ्लुएंस्ड हुआ। यानी कि ये जो एनी बेसेंट थी, शी वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदू डॉक्ट्रिन्स ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल। यानी कि कर्म क्या होता है, किस तरह से कर्म के हिसाब से जो ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल बना था, सोल होता है, और ठीक है, यानी कि कर्म की वजह से जो भी ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल होता है वो इसमें जो है, जो बहुत ज़्यादा एनी बेसेंट जो थे इससे हाईली इन्फ्लुएंस हुए थे। मिस बेसेंट जो थी उन्होंने अर्ज किया द इंडियंस टू टेक प्राइड इन द एंशिएंट इंडियन कल्चर। यानी कि शी वाज अ यूरोपियन, येट शी सेड द इंडियंस दैट दे शुड बी प्राउड, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर्स। She fostered the growth of Indian sympathy for the oppressed classes of the society and opened schools for the children of these classes. So she was very active reformist, and she also fostered that Indian sympathy for the oppressed, and society schools should also be opened. By her efforts, the Central Hindu College was set up at Varanasi इन 1898, एंड इन्होंने भी चाइल्ड मैरिजेस, कास्ट सिस्टम और जो स्ट्राइव टू इम्प्रूव, और जो भी विडोज़ का जो कंडीशन था उसको इम्प्रूव करने में इन्होंने भी मदद किया। इसके बाद है कंदुकुरी वीरसलिंगम। ठीक है, कंदुकुरी वीरसलिंगम ऑफ आंध्रा, बेसिकली आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, और इन्होंने ये इंस्पायर्ड थे ब्राह्मो समाज से, जो कि राजा राम मोहन रॉय स्टैब्लिश किए थे। उन्होंने स्टार्ट किया एक तेलुगु मैगज़ीन को 1876 में, लर्न मतलब टू टीच और टू एडवोकेट हीज आइडियाज़ ऑफ सोशल रिफरेंस टू द कॉमन पीपल। उन्होंने कंडेम किया कास्ट सिस्टम को, यानी कि वो अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को, और प्रोपगेटेड इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो इक्वालिटी है मैनकाइंड का बाय ओपोजिंग द कास्ट सिस्टम एंड ऑल, इन्होंने किया। वुमेंस को एडुकेशन और रीमैरिज ऑफ विडोज़ को भी इन्होंने सपोर्ट किया। He opened the first girls' school in 1874. He also formed an association for widow remarriage and female education. He published the Vivek Vardhani, a journal to promote enlightenment. In 1878, he launched a society for social reforms. तो बेसिकली ये जो थे, इन्होंने जो तेलुगु मैगज़ीन्स वगैरह को स्टार्ट किया, इक्वालिटी वगैरह को प्रमोट किया, और इन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला आंध्र प्रदेश में ही। इन्होंने एसोसिएशन भी फॉर्म किया विडो रीमैरिज, फीमेल एजुकेशन के लिए, और इन्होंने विवेक वर्धनी नाम का एक जनरल जो है वो निकाला टू प्रमोट इनलाइटनमेंट। 1878 में ही लॉन्च्ड हिज सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म।